Mumbai police is very good. Even if 26/11, I am the part and parcel of that investigation team. On the particular day I was at Marine Lines, I got a call from my boss. This thing has happened. Immediately we went there. Within 10 minutes we reached there. Even 93 Bomblast case, riots, even in shoe scam, that fraud of paper scam also. In that kidnapping case, I acted as a driver. At certain point, it was so horrible. I met him thrice in Mehboob studio while shooting and all. I was in Bandra. I met him. और जो character जो film को shoot होता है वो they are showing it. And here in Mumbai, as per my knowledge, there is no political interference. Seriously? 90% ऑफ द टाइम्स हमने बॉलीवुड में ही देखा है किसी को सिंघम बनते हुए, किसी को सुपर कॉप बनते हुए। अब इंटरनेट किसी और को सुपर कॉप कहता है जो एक्चुअल में सुपर कॉप रहे हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें सुपर कॉप कहा तो उन्होंने बहुत ही प्यार और मॉडेस्टी के साथ मुझे कहा कि मैं सुपर कॉप नहीं, मैं एक ऑर्डिनरी कॉप हूं। प्लीज वेलकम श्री दत्तात्रेय भरगुड़े जी। सर मुझे एक बात बताओ, Thank you. जिसने इतने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हों वो इतना मॉडेस्ट, हम्बल, स्वीट कैसे रह सकता है? मुझे लगा था कि कोई आएगा जिसको देखकर ही डर लग जाएगा मुझे। हाउ इज इट दैट यू मेंटेन सच स्वीटनेस, कामनेस? नहीं, it should be a nature of person. या I came from a village. Up to 11th standard, I studied in my village, and for 12th, I came in Mumbai. कौन सा विलेज सर? It's Satara. सतारा। Satara. So village, I know how to behave, how to work, how to talk with people, because I came from the grassroots to city. So that's. तो मैं that's आपसे एक lot of रिक्वेस्ट difference. करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एपिसोड ना ग्रास रूट लेवल तक के लोगों तक जाए, तो हम ज़्यादा हिंदी, आप चाहें तो मराठी भी बोल सकते हैं थोड़ी बहुत, sir. क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये एपिसोड जेन्युइनली वो ऑडियंस तक जाए जिन्होंने कभी ये सब चीज़ें सुनी नहीं है, देखी नहीं है, जानी नहीं है। क्योंकि कई बार हमारे शो पर टेलीविज़न, बॉलीवुड से रियल लाइफ हीरोज़ आते हैं, पर रियल लाइफ हीरोज़ क्या होते हैं आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सर सतारा से इस आज यहाँ तक की जर्नी में थोड़ी से चीज़ें हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो व्हेन यू वर अ यंग किड, जब आप छोटे थे, कभी सोचा था कि मैं पुलिस में जाऊँगा, मैं क्राइम फाइट करूँगा? वॉज इट अ ड्रीम? I never thought about police or crime because I born in village. Village का life कैसा था? Agriculture life, farmers, people, and this thing, that thing. But I got opportunity to study, and my brother, he brought me to Bombay for looking after my this career and all. He brought me to Bombay in 1981. So, in 12th standard, I came to Mumbai. So I saw both atmosphere, village and city also. So I got the opportunity, so I studied hard, and finally I appeared for this competitive exams, Lok Seva Ayog, the staff selection, and finally one fine day I was selected for this PSI post. So I immediately joined because so many people that time, PSI was very attractive post हाँ। for everybody from village to city also. So immediately I accepted this. Otherwise I was selected for this flight purser also. I was उस समय that time. Even I was selected for Army Corps Corps, वाओ, for education corps. But somebody advised me, one of my senior person advised me, you better you join police force because police have ample power. Means policeman can do anything, means from social work to educating or any work, any kind of work police are doing. मैं इसी बारे में आपसे सवाल पूछना चाहता था कि ये मैं जेन्युइनली इस बात को मानता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने भी लाइफ में देखी हैं जब मैं कुछ प्रॉब्लम्स में फंसा था, और ना क्योंकि हमें बॉलीवुड ने ऐसा ट्रेन किया होता है कि पुलिस के पास मत ही जाओ और फंसोगे और प्रॉब्लम होगी एंड ऑल। लेकिन जब आप जाते हो और जब आप मदद मांगते हो और जब आपको मदद मिलती है, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में जो बॉलीवुड में दिखाया गया वो गलत है, बिकॉज पुलिस एक्चुअली इज वेरी स्ट्रांग। अगर वो चाहें, इफ दे वांट, दे कैन रियली सॉल्व थिंग्स वेरी फास्ट।
कभी आपको ऐसा लगा कि बॉलीवुड हैज रॉन्ग्ड द पुलिस कम्युनिटी? बिकॉज हमेशा मैं बड़ा हो रहा था ना जब पुलिस को रिश्वत लेते हुए दिखाया गया, पुलिस को ठाकुर साहब की मदद करते हुए दिखाया गया. वी वर नेवर टोल्ड. जो आप वेब सीरीज कर रही हैं, पीपल आर नाउ शोइंग द रियल स्ट्रगल ऑफ पुलिस इन वेब सीरीज. क्या आपको लगता है बॉलीवुड ने बहुत गलत दर्शाया है पुलिस को? See, बॉलीवुड दे आर लुकिंग एज देयर बिजनेस, और जो कैरेक्टर जो फिल्म को सूट होता है वो दे आर शोइंग इट. बट एक्चुअल इन पुलिस लाइफ, एवरी पुलिसमैन दे आर very good. If your approach should be good, proper approach, and whatever, if anything happens, because police people, they are working as a primary first aid. If at initial stage if you approach to the police, वो जो आगे का जो घटना घटने वाली है वो रुक सकती है. हाँ. और वहाँ से अगर स्टॉप होता है तो इन फ्यूचर यू विल बी हैप्पी. या लेकिन एक गलती के लिए दूसरा गलती करोगे, तीसरा गलती करोगे, तो फंस जाते हो. पर सर एक बात बताइए, आपने भी अपने करियर में देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना पुलिस के पास जाने से कतराते, पता नहीं क्यों. जैसे मेरे साथ हुआ था क्या कि मुझे कोई परेशान कर रहा था, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था जिसमें मेरी गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हर किसी का एडवाइस था कि पुलिस में जाएगा तो और फंसेगा. एंड आई वाज लाइक, क्यों फंसूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा ना कुछ गलत किया है. नहीं, ये गलत है. कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू शुड अप्रोच टू द पुलिस. तो क्यों डरते हैं सर पुलिस से लोग? ये प्रोजेक्ट ऐसा किया है पुलिस फिल्म इंडस्ट्री में, प्रेस में, और 100% जो न्यूज़ आती है बाहर, 100% इट इज़ नॉट करेक्ट. हार्डली 5 to 10%. इवन हम लोग भी जो कॉन्फिडेंशियल बात रहती है तो वी कांट डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग. सही बात. हार्डली सम 5 to 10% न्यूज़ इज कमिंग आउट. ये ऐसा होता है. तो वो प्रोजेक्ट करने की वजह से पब्लिक आर नॉट, दे गेट फ्राइटन. एक आध दो छोटे मोटे सवाल पूछूंगा जिसके बाद मैं आपसे उन, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ों को आप खुल के नहीं बता पाए हैं या बता पाए होंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ को जानने की. पर सर जैसे जब कोई एक FIR कराना चाहता है ऑफ अ नॉर्मल थिंग, कोई भी क्राइम हुआ है, चोरी है, चकारी है, फ्लर्टिंग किया है, लड़की को परेशान किया, कुछ भी हो, लोगों का ये कहना है कि पुलिस FIR दर्ज करने में कतराती है. क्या ये बात सही है? नहीं, इट इज़ नॉट करेक्ट. Public should know their rights. If it is a cognizable case, you should insist a policeman, you please, this is a cognizable case. What is a cognizable case? Cognizance, police can take cognizance of that matter. अच्छा. That is a cognizable, and police has to take the cognizance. They have to write a FIR. Once your FIR is written, so investigation starts. लेकिन हर एक का राइट है और हर एक ने जाके कंप्लेंट देना चाहिए इफ़ इट इज़ अ कॉग्निजेबल. लेकिन सम पीपल व्हाट हैपन्स, अगर नॉन कॉग्निजेबल छोटा मोटा मैटर है तो उसमें भी FIR करो. भाई पीपल दे आर नॉट अवेयर अबाउट द लॉ, व्हाट इज कॉग्निजेबल एंड व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल लॉ. तो बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लॉ की वजह से पुलिस के ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है. यस सर, यस, दैट इज इट्स अ फैक्ट. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा. आपने महाराष्ट्र में मोस्टली अपना करियर बिताया, राइट? करियर 35 years आई सर्वड इन मुंबई ओनली. तो हम इसी चीज़ पे आना चाहेंगे. मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं दुनिया में अलग अलग जगह पे रहा हूँ. मैं इंदौर से पला बड़ा, फिर मैं महाराष्ट्र आया, मैं दिल्ली में भी वक्त बिताया, दुबई में रह रहा हूँ. मेरा ऐसा मानना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुंबई पुलिस इज बिल्ड डिफरेंट. मतलब मुंबई पुलिस के पास जितना प्रॉब्लम और जितना स्ट्रगल, उसके बावजूद द इफेक्टिविटी ऑफ मुंबई पुलिस इज क्रेजी. बिकॉज ऐसा कोई शहर नहीं है जिसकी ऐसी पॉपुलेशन हो, ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर एरिया भी ऐसा हो, जिसमें सब तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी है, क्रिमिनल्स भी हैं, सब कुछ है. ऐसा कोई शहर मैंने भारत में नहीं देखा जहां पे पुलिस को इतनी समस्याएं देखनी पड़ती. मतलब हमारे यहाँ कंप्लेंट्स कैसी होती है, सोसाइटी चेयरमैन बोल रहे हैं हमारे यहाँ पार्टी हो रही है, वैसी भी होती है, मर्डर की भी हो रही है, चोरी की भी हो रही है. डू यू थिंक मुंबई पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर इन आवर कंट्री? I will quote, I am proud of Mumbai police because I am part and parcel of Mumbai police. And what Mumbai police do, not a single other country or state police are doing it. Agree. Because we are so sensible. Mumbai police is very sensible. Even our bosses, they are also very sensible. Even if you report anything, immediately they will tell concerned officer. Sometimes something happens that we can't avoid. Yeah.
And here in Mumbai, as per my knowledge, there is no political interference. सीरियसली? Seriously, in every matter, they don't political interference is not there. Our superior officers, they decide whether it is proper or not proper. They will decide. Basically, it starts from senior PI. Senior PI of police station. He decides what is and people are very sensible. Police officers are very sensible in Mumbai. If you cross the limit of Mumbai, you will feel the difference हाँ in हाँ, policing also. करेक्ट. Even if you cross Dahisar, if Thana or this thing. But nowadays, all Maharashtra police, at least Maharashtra police, they are sensible and they are very effective. सो वेयर इज दिस इफेक्टिविटी कमिंग फ्रॉम? बिकॉज आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अब अगर महाराष्ट्र बॉर्डर से बाहर जाओगे तो भी डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा. एक शहर है जहाँ पे हर फ्राइडे सैटरडे नाइट पार्टीज होती हैं, फिर गणपति होते हैं, फिर ईद भी मनती है, सब कुछ होता है मुंबई में और सब कुछ मैनेज हो जाता है. 26/11 मैनेज हो गया, टेररिस्ट अटैक्स मैनेज हो गए. हाउ इज मुंबई पुलिस डूइंग इट? Mumbai police, they are very hard working. Even if 26/11, I am the part and parcel of that investigation team. 26/11 में and people, means our Mumbai police, they are working day and night without taking any rest. On the particular day, I was at Marine Lines. I got a call from my boss that this thing has happened. Immediately we went there. Within 10 minutes we reached there. From that day, 26/11, till 29th or 30th, I never went to my house. Even not me, my bosses also. Everybody was working. Everybody was at offices only. They are just go, if they say, Mr. Bargude, you go here, you go there. Immediately we, not me only, my colleagues and everybody, they were running here and there because that case was very sensitive. या Like other cases also, police, they are very strong and they are working from their heart only. That- अच्छा, एक और चीज आप लोगों के साथ बड़ी मुश्किल होती होगी, ये मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस के ऊपर ना मीडिया टेंशन भी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कहीं और की पुलिस के ऊपर इतना मीडिया टेंशन नहीं होता, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बॉलीवुड बीइंग इन ऑल दैट स्टफ. वो प्रेशर में काम करना, वो प्रेशर में डिलीवर करना और वो प्रेशर में सॉल्व करना केसेस. टेल अस सम इंसिडेंट दैट यू रिमेंबर, कोई केस के ही वो लेके कि जहाँ पे मीडिया की प्रेशर की वजह से आप मतलब या बीइंग इन द न्यूज दिस थिंग आपका काम अफेक्ट हो रहा. There are so many cases. वुड यू लाइक टू नेम वन? From 1993, even 93 bomb blast case, riots, then some, even in shoe scam, even in that fraud of paper scam also, this 26/11, other cases. Media, they are projecting something different. हाँ Actually, it is different. हाँ. But whatever they get the information, they just flush it out. हाँ. So that doesn't, and it affects our investigation also. तो सर क्या पुलिस नहीं रोक सकती मीडिया को? Media is the fourth pillar of our democracy. How we can stop? या बट They have liberty. उस फोर्थ पिलर में कुछ ईंटें बड़ी हाँ, कमजोर भी हैं. that is, media should restrict themselves या what to publish and what to not to publish. If I remember in 26/11, at initial stage, media was flashing everything. So it was affecting our operation. करेक्ट राइट, क्योंकि You must have seen that. अंदर लोगों को पता चल रहा था ना, सब कुछ चल रहा था पता. तो ये इसने तो एक्चुअल केस को खराब कर दिया, बल्कि क्योंकि उन्हें तो पता चल रहा था अंदर क्या हो रहा है, बाहर आप क्या प्लान कर रहे हो. नहीं, केस को खराब, हमको इन्वेस्टिगेशन में डिफिकल्टीज आई. Correct, केस आपके खराब लिए- नहीं हाँ, हुई, आपके लिए डिफिकल्टी बढ़ गई. इन्वेस्टिगेशन में डिफिकल्टीज आई और हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन था, फर्दर एक्शन, वो किधर न किधर उसको बिकॉज ऑफ मीडिया वी वेयर. सर ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली बात हो गई, क्योंकि ये इसके बारे में मैंने पूरी एक वेब सीरीज भी देखी है कि लाइव अपडेट्स चल रहे थे Live और updates. अंदर के लोगों को सब पता चल रहा था. जब आप लोगों को ये पता चला कि अब उन्हें तो सब पता चल रहा है, हाउ डिड यू प्लान, लाइक क्योंकि अब आपको 4 कदम आगे की प्लानिंग करनी है. So we have to keep some things confidential. So we don't even, as you said, this super cop and cop. I am an ordinary cop. We are not media, क्या बोलते हैं उसको,
पब्लिसिटी publicity, करने हाँ। वाले हम लोग नहीं है. हम लोग वी आर वर्कर्स. वी वर्कड हार्ड एंड वी वर्क फॉर आवर बॉम्बे सिटी, महाराष्ट्र एंड नेशन. सो वी अवॉइड मोस्टली वी अवॉइड पब्लिसिटी एंड ऑल. एक इमोशनल सा सवाल पूछूं आपसे. आपके साथ तो बहुत सारे पुलिस वाले जुड़े हुए होंगे जो आपसे नीचे भी होंगे, ऊपर भी होंगे. क्या सर कभी ऐसा लगता है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतने रिस्क लेते हैं, बिकॉज जब आप इन सारे केसेस की बात करते हो पुलिस सीधे रिस्क में भी आती है क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर रही है, फोटोज हैं, ये है वो है, और उसके बाद जो रिवॉर्ड मिलता है वो उतना बड़ा नहीं होता है. क्या आपको या दूसरे लोगों को कभी ऐसा लगता है कि यार हमारा जॉब थैंकलेस हो गया? It is a fact. Sometimes it pinches us. Even if we are working hard and suddenly those who are working hard, they are not getting, but somebody else is getting reward. So that time we feel. But even as it's my duty to work, we don't carry away with such incidents. तो कहाँ से मिलता है आपको ये सेटिस्फैक्शन? बिकॉज जो हमने सुना है कि पुलिस जितनी मेहनत करती है उतने पैसे तो उन्हें नहीं दिए जाते हैं, रिस्क भी होता है, तो फिर क्या ड्राइव करता है? Our work, जो वर्क जो रहता है ना, वर्क फोर्स, दैट इज आवर एक्चुअली मोटिव एंड दिस हेल्प्स अस टू वर्क. आज भी लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली ये काम करना चाहते हैं सिर्फ उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए. सेटिस्फैक्शन, ऑफ कोर्स सेटिस्फैक्शन. एंड यू नो पुलिस का जॉब ऐसा है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. इवन इफ यू मेरे सामने अगर आप गाली नहीं देंगे लेकिन पीछे गाली देंगे, लेकिन बाद में बोलेंगे नहीं ही हैज़ टू. इट इज़ अ फैक्ट. पुलिस जैसा रिस्पेक्टेबल जॉब कौन से भी डिपार्टमेंट में नहीं है. आई विल टेल यू एग्जांपल. इफ 10 people are there from different departments and all, if you walk in front of them, public whoever walks, he will smile, but अगर पुलिस वाला दिखा है ना उसको सैल्यूट करेगा. सर, हाँ. दैट इज व्हाट वी अचीव. अच्छा, ये बताना सच है या झूठ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रोहित शेट्टी हैं इनको आप ही ने प्लान किया था ताकि पुलिस के बारे में सब लोगों को अच्छी बातें भी पता चले और सब लोगों को पुलिस से रिस्पेक्ट मिले. आप मिले कभी रोहित शेट्टी से? I met him twice, thrice हाँ. in Mehboob studio while shooting and all. I was in Bandra. I met him. But what his project did is perfect. आई मीन ही इज द ओनली वन जिन्होंने एक्चुअली पुलिस को वो ड्यू रिस्पेक्ट दिलाया जो बहुत सालों से नहीं दिलाया गया था फिल्मों में. Actually, जो रोहित शेट्टी जो कर रहे हैं, some means our department officer, they are actually heroes like that only. हाँ. They have worked hard. Even we all have worked hard. Yeah. कभी कभी प्रोजेक्ट होता है, कभी कभी प्रोजेक्ट नहीं होता है. It happens. अगर मैं आपसे पूछूं, आप इन हाइंडसाइट अगर आप याद करें ऐसा कोई केस जिसमें आपको जेन्युइन सेटिस्फैक्शन मिला हो कि वो तो क्योंकि होता है ना, आत्मा खुश हो जाती कि ये करके मुझे गर्व फील हो रहा है खुद पे और खुद की टीम पे, वो कौन सा केस था सर? There are so many cases. one that you can talk about, क्योंकि ऑब्वियसली हम आप ही की परमिशन चाहेंगे. वन जो आपको लगता है कि नॉट जस्ट आपने, आपकी टीम ने, क्योंकि होता है ना कई बार पर्सनल मॉरल्स भी तो सामने आ जाते हैं, यू नो, जैसे हमें लगता है कि नहीं इसे तो न्याय मिलना चाहिए, इसे तो जस्टिस मिलना चाहिए. तो आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कोई एक ऐसा केस. नहीं, there are so many cases, but suppose, for example, I will tell you, if some kidnapping is there, या in that kidnapping, if we rescue that boy or whatever kidnap this person, that achievement we feel very proud. या One of my kidnapping case, one businessman was kidnapped from Kulava. ओह So we got the information. Entire crime branch. I was the investigating officer also. In that kidnapping case, I acted as a driver to deliver the cash along with that Seriously? kidnapped person's manager. At certain point, it was so horrible. Our team was there, everything was there, but one of the kidnapper came and have you brought the money? So manager, he got frightened. Well, I said, yes, we brought the money. Chalo, idhar chalo. As per our pre-plan, when I gave signal, everybody was here and there.
When I gave signal, nobody, because of, I don't know, there was dark or something. So he took that manager. What I did, I started the vehicle and dashed that person. But and I left that car and caught. And suddenly then everybody came. Everybody came, then we caught that person. Immediately, within a few minutes, that person was released by that kidnapper. Immediately, we got the call कि person is released. This satisfaction is very, Yeah. it's a great achievement. कोई एक ऐसा केस जहाँ पे आपने मेहनत बहुत करी, आपने कोशिश बहुत करी, लेकिन आपको बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर्स और बिकॉज ऑफ वट एवर, कई बार होता है ना सर, अनफेयर चीज़ें हो ही जाती है लाइफ में, कि आपको दुख रह गया हो कि काश इसमें मैं अपनी मनमानी कर पाता। क्योंकि मैंने एक चीज़ सुनी है, मेरे एक अंकल हैं जो पुलिस से काफ़ी क्लोजली काम कर चुके हैं, उन्होंने बोला कि पुलिस बहुत बढ़िया काम कर सकती है लेकिन लोग उनके हाथ भी बहुत बांधते हैं। यू नो, वी नो ऑफ दी स्टोरीज, झूठी नहीं है कि पॉलिटिशियंस के कॉल्स आते हैं या बिजनेसमैन प्रेशर्स होते हैं, या कई बार आपको बिकॉज ऑफ लॉ ऐसा है कि आपको छोड़ना पड़ जाता है लोगों को। ऐसा कभी हुआ है सर, आपको लगा जस्टिस डिनाई हो गई, भले ही पुलिस ने अपनी पूरी मेहनत कर ली, बट द लॉ फेल्ड यू और द पॉलिटिशियन और द सिस्टम फेल्ड यू? It depends on situation. Suppose if something we have to release a person, there is lot of pressure, but because of that we have to achieve something, तो थोड़ा लीलसी थोड़ा दिखाना पड़ता है, जो सिचुएशन देख के आदमी को कैसा हैंडल करना है, that third sense should be, and this third sense in Bombay police it is there. Yeah, that's true. बॉम्बे पुलिस गाड़ी में भी उनको पता रहता है कि कौन सी गाड़ी गड़बड़ है और कौन सी गाड़ी गड़बड़ नहीं है। हाउ, बट सर अगर हम फैसिलिटीज की बात करें, यू नो, जैसे मैं आजकल दुबई रह रहा हूँ, वहाँ पे लैम्बोर्गिनीज आर बीइंग एडेड टू पुलिस की फ्लीट। जब हम पुलिस को फैसिलिटी देंगे, ऑब्वियसली वो लोग बेहतर काम कर पाएंगे। हमारे यहाँ इंडियन पुलिस, मुंबई पुलिस को मैं देखता हूँ धूप में खड़े हैं, कई बार यू नो जब हम लोग गणपति वगैरह कर रहे हैं, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती है, देयर आर नो पब्लिक टॉयलेट्स, ये कुछ नहीं है। व्हाट कैन वी डू? नहीं, कंपेयर टू, देखो, व्हेन आई जॉइंड पुलिस फोर्स इन 1986, जी, I posted in Bombay in 1987. That time facilities and today's facilities, there is lot of difference. या There, when I was posted at Dadar police station, that was my first police station, there was only one jeep. आज के तारीख में 8 या 10 व्हीकल्स है हर एक पुलिस स्टेशन में. That facility is there. तो जब We जैसा can't. जब 26/11 जैसा कोई केस होता है या अटैक होता है, उस समय में चलते, तब आपके पास अपने आप को बचाने के लिए क्या था? ये लोग तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल चीजें लेकर आए, आप लोग के पास क्या था सर? 26/11 it was not planned. It was sudden attack. So जो मुंबई पुलिस, they were not aware या कि ये ऐसा होने वाला है. अगर इन्फॉर्मेशन मिलता तो वी वुड आल्सो प्रिपेयर्ड. नहीं, पर जब मिल भी लेकिन गई, अगर सडनली ऐसा कुछ अटैक वगैरह होता है तो वी कांट हेल्प समटाइम्स. इवन इफ lost people also, right? even now, suppose we are sitting in a studio, some 10 to 15 people come, they attack. We are unprepared, we are not prepared. So जो भी है अपना विल पावर है, वही वी कैन फाइट बिकॉज ऑफ दैट विल पावर. ऐसा नहीं होता है. लेकिन अभी बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर थोड़ा सा अनफेयर नहीं है कि अगर आजकल क्रिमिनल्स के पास ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है और हम हमारी पुलिस को वो नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, टेक्नोलॉजी पुलिस के पास भी है, पुलिस आर आल्सो देयर, लेकिन अभी सडन क्राइम जो होता है तो वी कांट अवॉइड समटाइम्स. अच्छा सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही, आपने बोला कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस महाराष्ट्र में इतना ज्यादा नहीं होता है. इज इट लाइक रियली ट्रू कि यस, आपने कभी फेस नहीं किया? इट्स माय एक्सपीरियंस. आई नेवर इफ अपना पुलिस का ब्रीद वाक्य क्या है अपना इंडियन, सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते. So if you go as per the facts, as per the merit, who will pressurize you? अगर आपने उल्टा सीधा किया, then it pressure comes. Yeah. Now suppose if you approach me for some help, and I feel that whatever you said it is a cognizable, I should definitely, it's my duty to help you. Yeah. अगर मैं बोला नहीं आप जाओ, ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता, डेफिनेटली विल अप्रोच समबडी, जो भी है इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उसके पास जाएंगे. यू विल ब्रिंग दैट प्रेशर फ्रॉम दैट
दैट एंगल. अगर मैं खुद ही, मुझे अगर लगता है कि यस he is a genuine person, his complaint is genuine, nobody will interfere. Yeah, If you are not doing, then and then people goes here and there. yeah. ऐसा कोई, मुझे तो मेरे लाइफ में ऐसा कोई आया नहीं, आपको कभी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया? कभी नहीं, नेवर नेवर. दैट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि हम लोग तो हमेशा देखते हैं कि क्रिमिनल पकड़ भी गया और उसके बाद सडनली एक फोन आता है और आपको छोड़ना पड़ जाता है. थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you, शोइंग द thank you. ह्यूमन साइड ऑफ द पुलिस. एंड दिस आई वांट टू से टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग, जनरली इन्होंने जो कहा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पुलिस के बारे में अपने परसेप्शंस किसी फिल्म को देख के, किसी न्यूज चैनल को देख के, किसी और की बातों को सुन के मत बताओ. मत बताओ. मैंने भी देखा है. जस्ट अप्रोच देम. इंसान है वो भी. अगर आप सही हो, अगर आपने कोई गलती नहीं करी है, तो वो आपकी मदद करने के लिए ही वहां बैठे हैं. और अगर आपको विश्वास नहीं है, वेल देन इस पॉडकास्ट को फिर से देखो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली एक ही मोटिव के लिए काम करते हैं और वो है सत्यमेव जयते. दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टू all the policemen of all the country, but especially to our Maharashtra police. We love you. Thank you. Thank you.